Hello, good morning, student. So in previous lecture, we started our new chapter, that is building material and construction, right? So what are the types of the building materials which are used in building construction, or which are used for construct the house? Okay, so we have seen various types of the building material. We already have seen the properties of the building material. These are the building construction materials. They are stone, brick, lime, cement, metal, timber, sand, aggregate, mortar, concrete, and bitumen. So these are the various kind of the building materials which are used for the building construction, right? Now these are the mechanical properties of the material. So first is strength. तो what is strength? किसे बोलते हैं strength? What is the strength? The maximum load material can carry without failure. मतलब material fail हुए बिना, okay, fail हुए बिना जो maximum load carry करता है, that is a strength of the material. Now the next property is elasticity. Okay, what is an example of elastic material? That is rubber, spring. There are the example of elastic material. So what is elasticity? When force is applied, when force is applied, material changes original position. When force removed, material will regain its original position. Okay, जब force apply होता है, मटेरियल अपना शेप या फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करता है. लाइक स्प्रिंग को हम अगर दोनों हाथ से पुल करते हैं तो वो क्या होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी. बट जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं, मतलब हम फोर्स रिमूव करते हैं, तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी. So what are the elastic material? That are spring and rubber. They are the elastic material. Plasticity. Okay, that is plastic material. प्लास्टिक मटेरियल मतलब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इट the length is goes to increase, or it will change its original position, and after removing the force, material will not regain its original position. Okay, material अपने original position या original shape में regain नहीं करता है. So that is a प्लास्टिक. ओके, और एग्जाम्पल इज अ पॉलीथीन बैग. अगर आप पॉलीथीन बैग को दोनों हाथ में पकड़ के अगर आप उसे पुल करते हो, खींचते हो, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी. बट जैसे ही आप लोड रिमूव करते हो, मतलब आप उसे फोर्स देना बंद करते हो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा. सो दैट इज प्लास्टिक मटेरियल. ओके, दैट इज प्लास्टिसिटी. डक्टिलिटी. व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल? के डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर. ओके, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ डक्टिलिटी. ओके, डिफॉर्मेशन मतलब उसके शेप में चेंज होगा. रप्चर मतलब ब्रेक होने से पहले. रप्चर मतलब ब्रेक होना. ओके, तो एग्जांपल इज एमएस बार, माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील क्या होगा, पहले बैंड होगा बार, और उसके बाद में वो रप्चर होगा, उसका उसके बाद में वो ब्रेक होगा. तो डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर, रप्चर होने से पहले डिफॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी. ब्रिटलनेस, रप्चर विदाउट डिफॉर्मेशन. ओके, वो कभी बैंड नहीं होगा, वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा. एग्जांपल इज अ ग्लास. ग्लास को आप मोल्ड करोगे, सॉरी, ग्लास को आप बैंड करोगे, वो बैंड होगा नहीं होगा. ओके, तो दैट इज अ रप्चर. रप्चर मतलब ब्रेक होना, टूट जाना. ओके, तो रप्चर विदाउट डिफॉर्मेशन, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द डक्टाइल मटेरियल, एंड दैट प्रॉपर्टी इज सॉरी, दैट मटेरियल इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल, एंड दैट प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस. चौक. ओके, जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो चौक. अगर चौक को आप दो हाथ से लेके तोड़ते हो तो वो बैंड होता है? कभी नहीं होता है. वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली रप्चर हो जाता है. तो दैट इज अ रप्चर विदाउट डिफॉर्मेशन, दैट इज अ ductility. Okay, malleability. Now anyone tell what is malleability? चलो chat box में बताओ what is malleability. किससे बोलते हैं malleable? Gold is an example of malleable material. Okay, so what is malleability? किसे बोलते हैं? चलो tell me. ये सभी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, ठीक है, तो you should know. In previous lecture we already have seen all these properties, so you must know. Hmm. Aluminium, we can convert metals into wires. Yes, we can convert that materials into wires or thin sheets. Okay, जिससे हम हैमरिंग करके thin sheet में convert कर सकते हैं, और we also can convert that materials into a thin wire. So that property is malleability, or that material is malleable material. Good.
Okay, now what is toughness? What is difference between strength, toughness and hardness? टफनेस किसे बोलते हैं, हार्डनेस किसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम लोड मटेरियल कैन कैरी विदाउट फेलियर, दैट इज स्ट्रेंथ. ओके, नाउ व्हाट इज टफनेस एंड व्हाट इज हार्डनेस? क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टफनेस एंड हार्डनेस? हम बोलते हैं कि ये मटेरियल बहुत हार्ड है या फिर इसकी टफनेस सही है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री प्रॉपर्टीज? व्हाट इज टफनेस? क्या होता है टफनेस? ओके, हार्डनेस क्या होता है? पहले हार्डनेस बताओ, चलो, व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस इज रेजिस्टेंस अगेन वियर टियर एंड स्क्रैचेस. मतलब कोई सरफेस पर अगर आप अपने नेल से सपोज उसको स्क्रैच करने की ट्राई करते हो तो वो स्क्रैच नहीं होगा. सपोज देर इज अ ब्रिक, तो उस पे आप अगर नेल से आप स्क्रैच करोगे तो वो स्क्रैच नहीं होगा, लेकिन आप कॉइन से करोगे तो वो स्क्रैच होगा. सो दैट मटीरियल इज हार्डर अगेन नेल बट नॉट अगेन कॉइन. ओके, तो सेम सपोज दिस इज अ वुडन सरफेस, आपका वुडन टेबल है, उस पर आप ट्राई करोगे अपने नेल से स्क्रैच करने की तो वो स्क्रैच नहीं होगा. ओके, सो दैट इज हार्डर, दैट मटीरियल इज हार्ड अगेन नेल, बट उसी को आप अगर नीडल से करते हो, ओके, सुई से करते हो तो वहां उसके ऊपर स्क्रैचेस बनेंगे. ओके, सो दैट इज हार्डनेस. तो दैट इज अ हार्डनेस इज अ रेजिस्टेंस अगेन वियर टियर एंड स्क्रैचेस. वियर टियर मतलब ઘસારો, એને આપણે ઘસારો કહીએ ગુજરાતીમાં. So that is a toughness requires strength as well as ductility. Toughness is how strong material is under adverse condition. Okay. ओके, और कोई बताएगा टफनेस क्या है? Okay, these are the strength. Okay, various strength, compressive strength, tensile strength, shear strength, these are the various strength. Resist to break. Okay, good. Okay, so these are the various strength. Elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, toughness. That is a capacity of material to absorb energy. मतलब मटेरियल ब्रेक होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो दैट इज मतलब कितनी इसका एक एक्सपेरिमेंट है दैट वी विल सी इन लेबोरेटरी. ओके, टफनेस का. तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर, एनर्जी फाइंड करनी होती है, वो उसका एक इक्विपमेंट होता है. ओके, गुड. Okay, so that is a toughness. So we have seen different properties of the material: hardness, toughness, malleability. Okay, stiffness. Stiffness, it is a force required to produce a unit deformation. Okay, deformation मतलब bend होना, तो unit deformation के लिए जो force required है, that force is called as the stiffness. Creep is a inelastic deformation due to a sustained load. Okay, in inelastic मतलब in elastic deformation क्या होता है कि मटेरियल अगेन रिगेन कर, इन इलास्टिक मतलब मटेरियल रिगेन कर लेगा. ओके, तो दैट इज इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ओके, to sustain its load. So these are the various properties of the material that we already have seen. Now we have seen different types of the materials. Okay, हमने stone देखा था, brick देखा था. What is the difference between stone masonry and brick masonry? Which दोनों में से कौन सी masonry की strength ज्यादा होगी? stone की strength ज्यादा होगी या brick की? कौन से material की strength ज्यादा होगी? स्टोन मटेरियल की स्टोन मैशनरी की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है या ब्रिक मैशनरी की? बट ऑब्वियस स्टोन मैशनरी की. ओके, स्टोन मैशनरी की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रिक मैशनरी. ओके, नाउ प्रेजेंट ले लेते हैं पहले.
24 डेट ना, 24/12। 1 2 3 4 5 6 7 8 number absent, 9 10 11 12 13 14 absent, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Okay. 27 28 29 30 absent, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41 42 absent, 43 44 45 46 47 48 49 absent, 50 51 2 3 54 absent, 55 56. ओके, हर्षिल एंड निधि, आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया अभी तक, देन कांटेक्ट टू संदीप भाई, संदीप सर, एडमिन डिपार्टमेंट में. ओके, आस्क हिम फॉर योर email address and enrollment number. ओके, थैंक यू, यू मे लीव नाउ. ओके, हम लोग ब्रेक के बाद लेक्चर है ना, उसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे लेवलिंग के. ओके, तो अभी आप लोग लीव हो सकते हो. थैंक यू.